colleague is also a business development manager. He will give you the introduction and presentation of the Secura software, and Ashmit will assist him. Ashmit Joshi. So Akshay, you can start the presentation and Hello. Okay. Am I audible? Yes. Yes. Just hold on. Before we start, I just want to. Hello, Mr. Rajat, you there? Yes. Okay. So Rajat जी, मुझे पहले आपका ये जानना था कि आपका requirement मतलब what you are looking for, sir. Means what you are doing, sir. What your company does, and what type of solution you are looking for, sir. अक्षय सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि रजत जी डिमांड नहीं कर रहे हैं कुछ भी. Okay. ये हम अपनी तरफ से इनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि व्हाट वी हैव. Okay, understood. तो रजत जी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, क्या करते हैं सर, जो उतना तो पता चलेगा हमको. रजत जी सीड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. ओके. इनका ऑल ओवर इंडिया बिजनेस है. ओके. और अपना एक सर्वर सेटअप करके थ्रू आउट इंडिया सारी जो हमारी लोकेशंस हैं वो हमारे लोकल सर्वर के थ्रू हम उनको एक्सेस देते हैं. ओके. सो टर्मिनल सर्विसेज सर्वर हमने सेटअप किया हुआ है. ओके. उसके थ्रू हमारी सारी लोकेशंस सेंट्रलाइज लोकेशन से एक्सेस की जाती हैं. ओके. दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. यस. ओके, अंडरस्टूड. सो ये जो लोकल से आप कर रहे हैं, तो एक आपने खुद का सॉफ्टवेयर बनाया कि टैली का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर? टैली में काम कर रहे हैं सर. टैली यूजर है सर. टैली है. ओके, अंडरस्टूड. नो प्रॉब्लम, क्लियर हो गया. थैंक यू. So Ashmit, you can start now. Himanshi sir, will you make me the host? Ashmit? Yeah, Himanshi sir, will you make me the host? So I will share my screen. No, I already shared the screen. You can see my screen? Yeah, I can see your screen. Okay, now you can start. Okay, hello everyone, good morning. My name is Ashmit Joshi and I'm working in Secura Group from last 2 years as a sales manager. So we are a part of Sanda Group. So it's a 14 years old multinational company. And so from 2011, we came into the IT. So from last 10 years, we are into the IT. And we have our own hotels in Goa like Dudhsagar Spa Resort. सर थोड़ा वॉल्यूम कम आ रहा है, थोड़ा या तो क्लोजली बोलिए. थोड़ा अभी आ रहा है सर? अभी बराबर है. हाँ, सॉरी वो हेडफोन थोड़ा नीचे था. So we have a hotels in Goa like Dudhsagar Spa Resorts and Baywatch Resorts as well. And we have diversified our business into the wellness, media and technology. So Secura Guard. So we have came up with the product known as Secura Guard. So keeping tally data for SMEs lock. It means that जितना भी आपका tally का data है जो small medium enterprises use कर रही है, that we keep in a log system. So what is the overview? What is the overview is the problem. That data risk all small medium enterprises face. आजकल के ज़माने में जो small medium enterprises है, वो internally और externally जो जितना भी उनका data है, उस पर क्या-क्या problem face कर रहे हैं. After that, we will tell you the solution. What is the Secura Guard? That why we have introduced Secura Guard in the market. What is the purpose behind that? And after that, we will tell you the benefits. What are the benefits of the Secura Guard? The problem data risk all small medium enterprises face. Since the digital resolution, business are creating, storing and sharing large amount of data. अभी आप देखोगे कि एवरी डे बिजनेस एक पीडीएफ हो, एक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीडियोज, इमेजेस, अगर देखोगे तो एवरी डे आपका डेटा स्टोर होते रहता है. आपके सर्वर पे होता है, आपके क्लाउड पे होता है और आपके लैपटॉप पे भी होता है. बट उसका उतना रिस्क भी होता है, डेटा लीक होने के चांसेस भी होते हैं. बट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या करते हैं कि दे डोंट यूज टॉप लाइक CRM, ERP उन लोग यूज नहीं करते. उनके पास उतना कैश फ्लो नहीं होता है, इसलिए उन लोग उतने प्रॉपर सॉल्यूशंस यूज नहीं करते और कॉम्प्रोमाइज करते हैं. इसके वजह से क्या होता है कि उनका डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. So however, with the high volumes of data being created on the daily basis, business increasingly factoring data theft. उतना उनका डेटा थेफ्ट होने के भी चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट. SMEs are the most at risk of data theft. 43% of cyber attacks target SMEs. अभी जितने भी साइबर अटैक्स है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को टारगेट क्यों करते हैं?
सिंपल है, बिकॉज उनके पास उतना कैश फ्लो कम होता है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, इसलिए वो आईटी पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करते। उनका जितना भी डेटा है वो इंटरनली हार्ड डिस्क पे या तो सर्वर पे मैनेज कर लेते हैं, और वो इजीली हैकर्स को इजी हो जाता है वो टारगेट करने के लिए। And 82% of the Indian small medium enterprises were targeted by ransomware attack by 2020 report। अभी 82% जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है इंडिया में, उन लोग टारगेट हुए रैंसमवेयर अटैक। अभी रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, जैसे कि ऑनलाइन जैसे कि फ्रॉड होता है, फिशिंग अटैक होता है, सीओ फ्रॉड अटैक होता है। जितना भी आपका ऑनलाइन डेटा है जो आप क्लाउड पे रखते हो, वो सर्वर पे रखते हो, वो सिर्फ रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रखने के बाद उसको टोटल 360 डिग्री से प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज आजकल के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लगता है कि अगर हम लोग ने डेटा सर्वर पे रखा, इसका मतलब हमारा डेटा टोटली 100% प्रोटेक्ट हो गया। बट इससे क्या होता है, इससे सामने वाले को इजीली एक्सेस मिल जाता है डेटा हैकिंग के लिए, तो इसलिए उसके चांसेस 82% तक बढ़ गए हैं। एंड 70% ऑफ द एम्प्लॉयज एडमिट टू टेकिंग कंपनी डेटा बिफोर डिपार्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया 2-3 साल, तो आपका जितना भी क्लाइंट का कस्टमर का डेटा है, मैं अगर आपका कंपनी छोड़ रहा हूँ तो छोड़ने के बाद वो डेटा मैं पूरा लेके जाऊंगा, मेरे मेल पे ले लूंगा, मेरे व्हाट्सएप पे ले लूंगा, या तो मेरे मोबाइल पे डेटा लेके मैं कॉम्पिटिटर की कंपनी ज्वाइन करके वहां पे मैं पूरा वो डेटा एक्सेस करूंगा और वहां के प्रोडक्ट मैं उनको सेल करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो करंट कंपनी है उनके जितने भी क्लाइंट्स है वो लीक हो गए, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को उतने उनके क्लाइंट्स भी मिल गए। तो इससे क्या होता है कि इंटरनल एम्प्लॉयज ही आपका डेटा लीक करते हैं। तो हाउ इज योर बिजनेस डेटा एट रिस्क? ये बिजनेस डेटा एट रिस्क कैसे होता है? सबसे पहला होता है कि साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स मतलब जैसे मैंने अभी आपको जैसे पहले स्लाइड में समझा है कि जैसे कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके ऊपर साइबर अटैक्स आजकल बहुत होते हैं, ऑनलाइन अटैक्स होते हैं, जिसमें विद इन 1 क्लिक। तेरा आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रॉपर। हेलो, अभी आ रहा है सर? अश्मित तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हिमांशु सर। हाँ अभी आ रहा है। हेलो यस हेलो हिमांशु सर, आवाज आ रहा है? हेलो यस अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी यस हेलो, सर, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर। ओके फाइन। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज साइबर अटैक। साइबर अटैक्स मीन्स क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको पहले समझाया कि रैंसमवेयर, सीओ फ्रॉड अटैक्स होते हैं। तो आजकल के जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के क्लाउड पे, सर्वर पे ये ज्यादा करके अटैक्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एक मेल आ जाता है, वो मेल पे आप विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में क्लिक करके आपका पूरा जितना भी डेटा है वो पूरा लॉक हो जाता है। और कभी कभी इतना वर्स्ट सिचुएशन आ जाता है कि आपका डेटा पूरा लॉक होने के बाद भी आपको सामने वाला पैसा मांगता है, और पैसे देने के बावजूद भी आपको आपका पूरा डेटा रिटर्न नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका कंपनी का डेटा का लॉस भी हो जाता है, और आपके कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाते हैं। विद द सेकेंड ऑप्शन इज एम्प्लॉय एक्सीडेंटली लीकिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे जानबूझ के कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से कोई डेटा आपका कॉपी करके लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टैली का डेटा है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उससे कोई भी एक फोल्डर मैंने कॉपी कर लिया, तो वो मैं थर्ड पीसी में जाके वहां पे अगर मेरा टैली लॉगिन रहेगा तो वहां पे मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। बट इसमें कैसा होता है कि अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें आप डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका डेटा टोटली एनक्रिप्टेड रहेगा। मीन्स द की विल बी विद यू एंड द डेटा विल विद मी। तो मैं कुछ डेटा का कर नहीं पाऊंगा। एंड द थर्ड इज एम्प्लॉय मैसिलिनियसली स्टीलिंग डेटा। मैसिलिनियसली स्टीलिंग डेटा मीन्स क्या होता है, कभी कभी ऑन जैसे कि अभी कोई मेल पे डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मेल पे इंपॉर्टेंट डेटा होने के बाद वो एम्प्लॉय अपने पर्सनल मेल पे ले लेता है। बट इसमें कैसे है कि अगर पर्सनल मेल पे अगर डेटा ले भी लिया, तभी भी आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा कि ये पर्सन ने ये पर्सन को ये मेल फॉरवर्ड किया है करके। तो इसका मतलब ना मेल थ्रू कोई कॉपी कर सकता है आपका डेटा, ना पेन ड्राइव थ्रू कॉपी कर सकता है, ना व्हाट्सएप थ्रू, ना टेलीग्राम थ्रू, कौन से भी साइट से कोई भी आपका एम्प्लॉय डेटा रिस्क चुरा नहीं सकता इससे। Sir, Next. sir, I'm Hello. breaking the rhythm in between. It's Rajat this side. Himanshu ji, can we hurry up? क्योंकि these all problems I'm aware of, and क्या एक बार ये हम सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं rather than श्योर। तो हम लोग अभी आपको प्रोडक्ट बेनिफिट बता देते हैं। जस्ट ओके, व्हाट इज द सिक्योर कार्ड बेनिफिट? ओके,
और जो बेनिफिट हमारा है वो हम आपको बता देते और प्रोडक्ट डेमो कर देते सर। हाँ, Okay. the first benefit of is theft proof. Theft proof means क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपका कोई इंटरनल एम्प्लॉय और एक्सटर्नल हैकर अगर आपका डेटा कॉपी करने की भी कोशिश करेगा तभी भी वो कॉपी नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने डेटा कॉपी भी कर लिया तभी भी वो थर्ड मशीन में जाके एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज वो जितना भी आपका डेटा रहेगा वो टोटली एनक्रिप्टेड रहेगा। इसका मतलब है वो थर्ड मशीन में जाके वो कॉपी करने के बाद भी उसको यूज नहीं कर सकता। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। द सेकेंड बेनिफिट इज सेफ फ्रॉम मिस्टेक एंड डिजास्टर। सेफ फ्रॉम मिस्टेक एंड डिजास्टर मीन्स क्या होता है कि कभी कभी आपका कोई लैपटॉप खराब हो जाता है, कभी कोई करप्ट हो जाता है, कभी कभी लैपटॉप का डेटा भी करप्ट हो जाता है। बट इसमें कैसे कि आपका जितना भी डेटा है उसका हम लोग आपको ऑनलाइन बैकअप सॉल्यूशन लेके देते हैं। 5 GB तक हम लोग आपको स्पेस देते हैं और सिर्फ बैकअप लेके नहीं देते, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑनलाइन रैंसमवेयर एक्टिविटीज होती है उससे भी हम लोग आपका जितना भी डेटा है वो टोटली प्रोटेक्ट करते हैं। द थर्ड बेनिफिट इज सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड। सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड मीन्स क्या होता है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हो कि कोई एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है वो सिर्फ आप ही एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो इसमें कैसे कि आप इसमें एक फोल्डर हाइड कर सकते हो, उसके बाद यू कैन कीप अ प्रॉपर पासवर्ड टू इट। अभी आप देखोगे कि जैसे कि विंडोज हो गया, अगर कोई फोन हो गया, उसमें आप इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि इस पे कैसे कोई इमेजेस को वीडियो या तो कोई पीडीएफ हाइड अनहाइड कैसे करना है। बट इसमें कैसे कि हाइड करने के बाद भी प्रॉपर पासवर्ड रखते हैं, वो पासवर्ड एक्सेस करने के बाद ही भी वो सामने वाला पर्सन वो डेटा एक्सेस कर सकता है। द फोर्थ इज इंट्रूडर प्रूफ। इंट्रूडर प्रूफ मीन्स क्या होता है, इफ समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन योर सिस्टम, अगर आपके टैली सिस्टम में कोई थर्ड मशीन से लॉग इन करने की ट्राई कर रहा हो तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा दैट समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन योर सिस्टम। अगर सामने वाला पर्सन 3-4 अटेम्प्ट करता है, पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, तभी भी आपका पूरा जो डेटा है टैली का वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। मीन्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा डेटा लॉक हो जाता है। इसका मतलब आपका जितना भी डेटा है वो 100% प्रोटेक्ट हो जाता है। एंड द फिफ्थ इज स्पाई प्रूफ। स्पाई प्रूफ क्या होता है कि अगर आपके मशीन में किसी एम्प्लॉय ने अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, या आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर किसी ने इंस्टॉल किया, वो जितना भी आपका कंपनी का डेटा आपके लैपटॉप में है वो पूरा स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके सामने वाले के पास पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है। और कभी कभी कैसा होता है कि आप अगर गूगल पे कोई R&D कर रहे हो, अगर कोई EXE डाउनलोड हो जाता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो इंस्टॉल होने के बाद आपको पता नहीं चलता, बट आप इग्नोर कर देते हो उसको एक EXE देख के। बट वो एक EXE एक स्पाई प्रूफ सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपका पूरा डेटा कॉपी हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि डेटा कॉपी होने के बाद आपका डेटा लीकेज के भी चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। ओके, सो सर रजत जी, कैन यू हियर मी सर? Yes, yes, yes. You're right. ओके, सो ये हमारा प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है। ओके, Yeah. अभी मैं आपको एक्चुअल प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रोडक्ट को कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके वहाँ पे सर। ओके, सो मैं आपको ये प्रोडक्ट बेनिफिट बताता हूँ। तो हमारा जो प्रोडक्ट है सिक्योरा, उसको जब भी आप स्टार्ट करेंगे आपको पासवर्ड पूछता है, कंपलसरी है, तो आपको आपका पासवर्ड डालना है और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तभी प्रोडक्ट चालू होगा। अजय, अभी हमारे पासवर्ड भी 2 तरीके के हैं, एक है नॉर्मल पासवर्ड जो नॉर्मल मेरे सब डेटा दिखेंगे, और मुझे प्राइवेट एरिया भी हमने दिया हुआ है। तो अगर आपको चाहिए कि कोई ऐसा डेटा जो आप खाली जब भी चालू करें तो आपको ही दिखे आपके कंप्यूटर में, तो प्राइवेट एरिया हम पासवर्ड आप सेटअप कर सकते हैं। ओके, अभी हम हमारे एप्लीकेशन में, अभी आपको मेरी एप्लीकेशन की सब दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? पहले मैं चेक कर लेता हूँ बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग Yes, मैंने yes. एक मिनट, नहीं दिख रही होगी शायद। अभी दिख रही है अभी मेरी दिख स्क्रीन? रही है सर। हाँ, ये ठीक है। ओके, बिकॉज पहले कैसा था, देखिए ये है ना, स्क्रीन शेयरिंग हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है, लेकिन एज डेमो के लिए मैंने अभी ऑन किया है सर, अदरवाइज स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है सर। तो ये प्राइवेट एरिया है जहाँ पे आप आपका पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। तो जब भी आप एप्लीकेशन चालू करते हैं तो आपके 2 तरीके के डेटा मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के। ओके, और अभी हमारे जो कंप्यूटर में नॉर्मली ऐसे डेटा कोई भी रहता है, जैसे अभी मेरे कंप्यूटर में टैली का डेटा है। ओके, सो मैं अपने कंप्यूटर में जाता हूँ, मेरे कंप्यूटर में टैली फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मेरे डेटा ऐसे नॉर्मल ओपन रहते हैं, ये टैली का डेटा है। ऐसे कोई भी डेटा, मैं अभी जस्ट टैली का एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन सिक्योर एनी डेटा सर। ओके, ये टैली के डेटा ऐसे ओपन है, तो हमारे पास ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि हमने फोल्डर लॉक एक मॉड्यूल दिया हुआ है,
ये देखिए, दिख रहा है आपको? Yeah. अभी यहाँ पे हम फोल्डर लॉक का मॉड्यूल है जो एडमिन के पासवर्ड से चलता है, मतलब आपके पासवर्ड से, आपने जो पासवर्ड आपका सेट किया होगा उससे ही चलेगा। ओके। और जब भी मैं उसको चालू करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, फोल्डर एंड प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अभी मैं देखिए डेटा का फोल्डर आपको जो मुझे सिक्योर करना है, तो आपको क्या करना है, फोल्डर में जाना है। ओके। अभी ये फोल्डर में जाके प्लस बटन में आपको क्लिक करना है, और आपको जो फोल्डर आपको सिक्योर करना है वो आपको खाली सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सी ड्राइव में गया, मैं टैली में गया, और मुझे डेटा फोल्डर सिक्योर करना है, मैं डेटा फोल्डर में गया सर। ओके। Yes. शायद मुझे ब्लैंक स्क्रीन मैनेजर ऑन है, मैं एक मिनट आपको इसको दिखनी होगा, ब्लैंक दिखता होगा ना, जस्ट होल्ड ऑन, मैं वापस दिखाता हूँ आपको। I cannot make out, जो भी आपको सिक्योरिटी करनी है डाउन, आप वो कर दीजिए एक बारी के लिए। हाँ, एक मिनट में कर देता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट चालू रखिए, बिकॉज आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है शायद। अभी आपको लॉगिन स्क्रीन दिखती होगी, राइट? हाँ, अभी ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है आप। यस। या एक मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ मैं खाली। ओके, अभी आपको दिखेगा बराबर। ओके, अभी आपको बराबर दिख रहा है सब डेटा? गुड। फोल्डर वाला एक आ गया है, एक हाँ। अब ये फोल्डर लॉक है जहाँ पे मैंने अभी टैली का फोल्डर ऐड किया है, ये मुझे Okay. दिख रहा है आपको, ये जो फोल्डर अभी मुझे सिक्योर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट पे मुझे क्लिक करना है और मुझे उसको सिक्योरिटी एनेबल करनी है, और मैंने समझो कि उसको हिडन मार दिया। हिडन दिखा? अभी देखिए हिडन जैसे ही मारा ना, ये कंप्यूटर में मेरे फोल्डर, डेटा फोल्डर है ना, किसी को दिखेगा ही नहीं, पहले कंप्यूटर में फोल्डर ऐसा है। एरर आ गया यहाँ पे कि ये फोल्डर है ही नहीं, चेक स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। या इवन आप डॉस कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाएंगे, चलो आपको मतलब क्या होता है कि अगर मैंने हिडन किया था ना नॉर्मल विंडोज के तरीके से जहां से हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से तो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी ओपन ही हुआ। ओके। सो हम इस तरह से सिक्योरिटी देते हैं कि आपके कंप्यूटर में डेटा पड़ा है लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा डेटा है फर्स्ट। तो सर एक बार वो 3 डॉट्स पे क्लिक करना है डेटा वाले या पे, प्लीज श्योर करता हूँ मैं। अभी देखिए, और आपने इसको हिडन को क्लिक किया है ना। यस। अभी मैं क्या कंपनी डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ विद टेली सॉफ्टवेयर बीइंग इट हिडन? यस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी बताता हूँ। हाँ जी। अभी आप ये लोगों का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने प्रोग्राम का ऑप्शन दिया है। या अभी ये प्रोग्राम में हमने क्या किया, आपको जो एप्लीकेशन को अलाउ करना है। या ओके। अभी मैंने सी ड्राइव में गया, मेरी टैली एप्लीकेशन को मुझे अलाउ करना है देखने के लिए, मैंने टैली एप्लीकेशन ऐड कर दी, ये देखिए मैंने ऐड कर दी, मुझसे अभी उसको एनेबल नहीं कर रहा हूं आपके लिए, जस्ट दिखाने के लिए। यस यस। ओके, मैं टैली चालू करता हूँ अभी। ओके, अभी मैं देखिए सिलेक्ट कंपनी में गया, मेरा पाथ है डेटा फोल्डर का ही पाथ है, आपको दिखता होगा। मुझे दिख रहा है कि डेटा नहीं है बिकॉज एक्सेस टैली को भी नहीं है अभी, राइट। अभी मैं आपके सामने टैली को एनेबल किया मैंने आपके सामने। ओके, अभी मैं वापस एस्केप मार रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, अभी मुझे डेटा दिखना चालू हो गया। ठीक है सर। अभी लेकिन टैली में दिख रहा है, लेकिन बाहर जो दूसरे सॉफ्टवेयर है, कोई भी एप्लीकेशन में जाएंगे आपको वहां पे डेटा अभी भी नहीं दिखेगा। सॉरी, ये दिख रहा है आपको सी ड्राइव टैली डेटा नॉट अवेलेबल। ठीक है सर। और इवन मैं डॉस कमांड में भी जाऊंगा अभी भी मुझे नहीं दिखेगा। तो खाली एप्लीकेशन जो आप अलाउ करेंगे वही एप्लीकेशन देख पाएगा। ये लोकल सर्वर पे अवेलेबल है या फिर सभी क्लाइंट मशीन्स पे सेम प्रोसीजर रहेगा? ओके, सो फर्स्ट तो आपके पास 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा रहते हैं। एक होता है कि लोकल कंप्यूटर पे डेटा रहते हैं और दूसरा रहता है सर्वर पे डेटा रहते हैं। ओके, सो हमने क्या किया है कि जहाँ पे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है
वहां पे क्या होता है, वहां पे भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे सिक्योरिटी होती है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो ये मल्टी यूजर जो एनवायरनमेंट होता है, वहां पे हम आपको ये एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन देते हैं। पहले तो आपके जितने भी ऑफिस के एम्प्लॉयज है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज है उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि आपका जो नेटवर्क है मल्टी यूजर वाला, उसमें आपका जहाँ पे नेटवर्क का फोल्डर है, तो यहाँ पे आप ना फोल्डर का पाथ, पब्लिक पाथ और प्राइवेट पाथ, मतलब आप प्राइवेट एरिया और पब्लिक एरिया के दो अलग अलग पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हो। और उसका हम क्या करते हैं, जब भी हम मल्टी यूजर रहता है, हम आपके मतलब सर्वर पे ना एक सिक्योरा का प्लेटफॉर्म सेटअप करते हैं। तो आपका जो डेटा रहता है उसका हमारे पास उसका यूजर नेम पासवर्ड हम आपको सेट करके देंगे, जो आपको यहाँ पे डालना होता है। जो आप सेट करेंगे वो यहाँ पे आपको डालना होता है। हम नहीं सेट करते, आप भी सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बार वन टाइम सेटअप करके रखना है। ओके, तो फायदा क्या होता है, अभी ये जो भी यूजर है जिसको भी आप है ना ये टैली का डेटा असाइन करेंगे, जैसे अभी मैं कोई यूजर में गया, अभी मैं पहले टैली का डेटा सेट करता हूँ, सॉम्स करके सेंड ऑफिस मैनेजमेंट सर्विस, और मेरा समझो कि नेटवर्क का कोई पाथ है। ओके, तो मेरा पब्लिक पाथ है ये, वो मैंने सेट किया। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो डेटा जहाँ पे रहता है नॉर्मली, और मेरा प्राइवेट एरिया का डेटा है वो, उसका मैंने प्राइवेट का पाथ सेट किया फॉर एग्जांपल, और मेरा यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। मैंने मेरा पासवर्ड भी सेट कर दिया। अभी ये जैसे ही मैंने ये पासवर्ड सेट करूंगा, मेरा एक डेटा सेट हो जाता है टैली का। ओके, अभी मैं कोई भी एम्प्लॉय में जाऊंगा, और वो एम्प्लॉय में जाके मैं, मुझे जिसको भी असाइन करना है मैं असाइन कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगर टैली बोर्ड में जाके मैं जिसको ऐड करना है मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर सकता हूँ। ये सॉम्स का डेटा मुझे देना है, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सिंपल इज दैट। ओके, सो ये टैली का डेटा मैंने असाइन कर दिया जो यूजर को। ओके, अभी ये सॉम्स का डेटा असाइन हो गया उसको, ये यूजर को। अभी जब भी वो यूजर कंप्यूटर में जाएगा अपने अपने यहाँ पे, वहां पे भी उसको सिक्योरा मिलेगा, जहाँ पे वो जाके यहाँ पे टैली का जो आइकन है वहां से उसको चालू करना है टैली। जैसे यहाँ से टैली चालू करेगा, अभी तो मेरा नेटवर्क मोड कॉन्फ़िगर नहीं है, तो टैली चालू करेगा, उसका टैली डेटा वहां से जो डेटा है वो डेटा ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर ले लेगा, और वो डेटा में ही काम कर पाएगा, लेकिन उसके कंप्यूटर में वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा वो डेटा। इस तरह से हमने ये प्रोसेस करके रखा है सर। ओके, नेटवर्क मोड में। लेकिन लोकल कंप्यूटर में तो आपने देख लिया हम कैसे आपको डेटा सिक्योरिटी देते हैं। खाली सिंपल टैली का डेटा सिक्योर कर सकते हैं, ऐसे लोकल कहीं भी एप्लीकेशन है जैसे आपकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, उसको भी आप सिक्योर करना है, ऐसा कर सकते हैं सर। ये जो आपने यहाँ पे माई एप्स के अंदर टैली दिखाया हमारे को, हाँ, ये कहाँ से एक्सेस कर रहा है टैली को, मतलब टैली EXE को कहाँ से एक्सेस जब भी कर रहा है फर्स्ट, जो हमारा? हाँ, जब भी फर्स्ट टाइम जब भी सेट करेंगे, क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे पूछेगा आपके आपको कौन सा पाथ सेट करना है। EXE कहाँ पड़ा है वो बताना होगा। हाँ, वो आपको सेट करना पड़ेगा वन टाइम। ओके, मतलब हमें जो रूटीन, मान लीजिए कोई अपग्रेड आता है सॉफ्टवेयर का, तो हमें हाँ, उसी फोल्डर में ही उसको अपडेट करना है, तो यस ये यहाँ पे इसका मैपिंग हो जाएगा। यस, परफेक्ट सर। अभी इस पीसी के ऊपर टैली खोलेंगे आप और नेटवर्क पर डालेंगे, ये आपने नेटवर्क को तो अभी अलाउ नहीं किया हुआ ना? नहीं, अभी करंटली क्या है, ये पीसी मेरे घर पे है, और ये जो मेरा ऑफिस का पीसी है अलग अलग है, ये अलग पीसी है। मैं ऑफिस टू ऑफिस में नेटवर्क कनेक्ट कर पाऊंगा ना सर, लोकल नेटवर्क। अच्छा, तो ऑफिस में आपके एक ही पीसी है, नेटवर्क पीसी नहीं है क्या? नहीं, दूसरा पीसी है, लेकिन हम वहाँ पे मैंने सेटअप नहीं किया था। हम लोग अभी जस्ट अभी है दूसरा पीसी में, लेकिन हमने अभी सेटअप नहीं किया बिकॉज हमारा दूसरा भी टेस्टिंग चल रहा था। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये पीसी है दूसरा, वहाँ पे भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ने टेस्ट सेटअप नहीं किया है करंटली टैली उसके अंदर, ऐसा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूजर पीसी है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक टैली सेटअप नहीं किया है। कर दो सर, 2 मिनट लगेगा, कितना टाइम? नहीं, ये इसमें कैसा है, मुझे नेटवर्क का पीसी है ना, मुझे ये सेटअप में डालना पड़ेगा बिकॉज ये अभी करंटली मेरा दूसरा सेटअप है। उसको कैसा है, मैंने बोला ना, सिक्योर प्लेटफॉर्म में मुझे डालना पड़ेगा।
ठीक अगर है। चाहिए तो आपको मैं ये सेटअप करके 1-2 घंटा लगेगा, बिकॉज मुझे ना वो जो हमारे जो ये ऑफिस में अभी है ना, वो 12:30 बजे तक आ जाएंगे लोग, जो सिस्टम एडमिन वाले हैं, क्योंकि वो लोग 10 बजे तक रहते हैं, तो वो लोग 12:30 12:30 1 बजे आते हैं, तो उनको मैं बोलूंगा वो सेटअप करके दे देंगे मुझे। तो जैसे ही करेंगे ना, तो यहाँ से मैं टैली से यहाँ से स्टार्ट कर पाऊंगा। लेकिन ये अभी देखिए मेरे को नेटवर्क सेट ही नहीं किया, तो मुझे टैली का आइकन ही सेट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे टैली दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इस यूजर को टैली दिया ही नहीं है नेटवर्क पाथ से इसके लिए। तो मुझे वो सब सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा सर चलिए। इसके लिए। इसको आरडीपी पे कैसे सेट करते हो? आरडीपी पे कैसे सेट करते हैं? हाँ, वहाँ पे परमिशन कैसे वैसे देने आरडीपी टाइप? अच्छा, जब भी आरडीपी में आप काम करें तो आप कैसे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम करें कि सिंगल यूजर एनवायरनमेंट? मल्टीपल। तो अभी आरडीपी में भी अभी समझो कि मैंने कंप्यूटर एनिडेक्स एक्सेस किया, वो आरडीपी से भी सेम ये एक्सेस ही होता है सर। ओके। अच्छा, आरडीपी में भी 2 तरीके के होता है। एक होता है कि आपने क्लाइंट पीसी में आरडीपी ले रहे हो, कि आपने सर्वर पे डिफरेंट यूजर बना के रखा है। जैसे कि अभी मेरा एक सर्वर है, क्लाइंट पे। ओके, आपने सर्वर पे मल्टीपल यूजर नहीं बनाया, बराबर है? नहीं। ओके, बिकॉज सर्वर पे मल्टीपल यूजर बनाते हैं तो उसका अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, और क्लाइंट पे होता है तो अभी जो मैं बता रहा था वो कॉन्फ़िगरेशन होगा सर। ओके, तो ये अभी आरडीपी इज नथिंग बट अ कंप्यूटर एक्सेस सिस्टम। अभी मैं आरडीपी से भी कर सकता हूँ, वीपीएन से भी कर सकता हूँ, या मैं एनिडेक्स या टीमव्यूअर से भी कर सकता हूँ। आरडीपी में हम लोग सिर्फ टैली एप्लीकेशन को एक्सेस अलाउ करते हैं, हमने डेस्कटॉप एक्सेस नहीं दिया हुआ ओके, आरडीपी एक्सेस के थ्रू। समझ गया बट मैं। आपके वाले केस में हमें वो आपके वाला जो एप्लीकेशन बनेगा, क्या वो टीएस प्लस में एज ए एप्लीकेशन असाइन करके उसमें डाल सकते हैं? हम नहीं डाल सकते हैं। आप सिक्योरा को डाल सकते हैं उसके अंदर टीएस प्लस में। टीएस प्लस में सिक्योरा को ऐड कर देंगे और फिर सिक्योरा से फर्दर टैली का हमें आइकॉन मिल जाएगा। यस 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 यस। ओके, ठीक है। अभी जैसे इसमें फायदा क्या है, इसमें क्या फायदा है आपको जो सिक्योरा से चालू करने में, कि आपको है ना यूजर वाइज अलग अलग आप है ना उसको राइट्स दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग वो है। अभी दूसरा फायदा क्या है कि कोई अभी समझो कि मतलब मुझे किसी का डेटा अभी ये है, मैंने किसी को दिया है, अभी किसी को भी वापस लेना है वहां से मैं वापस इजीली ले सकता हूँ। बिकॉज हम क्या करते हैं सिक्योरा में अंदर यहाँ पे डिवाइस ऑप्शन देते हैं, डिवाइस मैनेजर में। समझो कि अभी कोई इधर टेस्टिंग वाला यूजर रहेगा, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव यूजर एक ही है टेस्टिंग के लिए। ओके, अभी यहाँ पे अगर डिवाइस लिस्ट में ये डिवाइस है, तो अभी मुझे उसका कोई भी डिवाइस का डेटा बंद करना है ना, मैं यहाँ से डिवाइस बंद कर सकता हूँ। तो मतलब कि उसके घर से भी काम कर रहा है या कहीं से भी डेटा कर रहा है, अपना ऑफिस का डेटा यूज कर रहा है, कि उसके बैकअप है ना ऑटोमेटिक हमारे क्लाउड सर्वर पे भी रहता है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे आपको लगता है कि वहां से उसका आपके वहां से डेटा डिलीट कर देना है उसके वहां से, तो आप डिवाइस बंद यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके वहां से डेटा निकल जाएंगे, क्योंकि आपका बैकअप ऑटोमेटिक क्लाउड सर्वर पे रहता है। बिकॉज हम सिक्योरा के साथ 5 GB पर यूजर क्लाउड स्पेस देते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी क्या है वो बताता हूँ ना, वो भी बताता हूँ, सिक्योरिटी भी बताता हूँ सर। अभी ये सिक्योरा क्लाउड है जो हम देते हैं, जहाँ पे आपके डेटा जो भी है, डेटा आपके कंप्यूटर के जो भी डेटा होते हैं ना, जो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक हो जाते हैं, वो भी एनक्रिप्टेड अपलोड होते हैं सर। जी अभी ये देखेंगे सब जिप फाइल है टैली की जो एनक्रिप्टेड है, और उसकी एक्सटेंशन सिक्योरा वाली है। तो ये कैसे होता है कि हमने क्या किया है कि हर एक यूजर वाइज एक के ना यूनिक की बनाई है, और जो इसका एक्सेस आपके पास ही है, हमारे पास भी नहीं है, और हमारे पास तो जीरो नॉलेज रहता है सर। मतलब कि नहीं, आपका अभी कोई अभी आप खोल रहे हैं ना, अभी जो आप खोल रहे हैं ये क्या है? हाँ, ये भी तो किसी क्लाइंट का डेटा है ना? नहीं मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है, मेरे कंप्यूटर का मेरा डेटा है। मैं आपको बता रहा था ना टैली में, वो मेरा खुद का डेटा है, मेरी कंपनियों का डेटा है सर। मैं किसी और का नहीं देख पाऊंगा सर, पॉसिबल ही नहीं है इसमें। ये क्लाउड जो है ये आपका खुद का है या एडब्ल्यूएस पर डाटा है? हमने हमारा खुद का AWS के अंदर हमारा बनाया हुआ है। एडब्ल्यूएस के अंदर आपका बनाया हुआ है? यस। ठीक है। और ये सिक्योर सर्वर है या नॉन सिक्योर? सिक्योर सर्वर है सर, सिक्योर है। और अगर आपको चाहिए आपके ऑफिस में भी सिक्योर बनाना है सर्वर, तो हम बना के दे सकते हैं। आपके ऑफिस में भी क्लाउड सर्वर बना के चाहिए, वो भी बना के दे सकते हैं। ओके, सो ये अभी इसमें फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ इसका, ये डेटा का। अभी जो आप काम करते हैं टैली में, उसका ऑटोमेटिकली ना क्लाउड में डेटा सिंक होता है,
ओके, सो अगर आपका आर्टिस्ट फेल होता है, टाइम डिफरेंस, हाँ सब बताता हूँ मैं, एवरीथिंग जैसे जैसे आपको चाहिए ना उसका, आपको वर्जन मैनेजर में जाएंगे, आपको वर्जन हिस्ट्री दिखेगा। 1 मिनट, ये फाइल में नहीं है, ये फाइल में होगा। ये देखिए वर्जन, डेट एंड टाइम के वाइज आपका है ना वर्जनिंग मेंटेन होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप यहाँ पे बनता है, और आपको अनलिमिटेड मिलता है। आपको जो भी सेट करना है सेट कर सकते हैं। आपको लास्ट 50 बैकअप रखना है, 60 रखना है, 100 रखना है, जितने भी बैकअप रखना है आप रख सकते हैं। ओके परफेक्ट। ओके, सो आपका बैकअप सॉल्यूशन भी यहाँ पे आ जाता है सर। और ये यूजर मतलब क्लाइंट को मिलता है इसका डाउनलोड करने का? जो यूजर है उसको नहीं मिलेगा। मैं एडमिन हूँ इसलिए मेरे पास ऑप्शन है डाउनलोड करने का, मैं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन एज अ यूजर कुछ नहीं कर पाएगा, यूजर देख भी नहीं पाएगा। नॉट एज ए यूजर, एज ए कंपनी ओनर। हाँ, कंपनी ओनर आप कर सकते हैं ना। तो वहां पे जाके जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका एक्सटेंशन वापस चेंज हो जाएगा या फिर मैनुअल करना पड़ेगा? तो उसका एक्सटेंशन आपको है ना करना है तो आपको सिक्योर फाइल एक्सप्लोरर दिया गया है, सिक्योर फाइल एक्सप्लोरर दिया गया है, जहां से आपको जो भी फाइल, अभी समझो कि मेरे कंप्यूटर में जस्ट होल्ड सर, अभी मेरे कंप्यूटर में इतनी सारी फाइलें सिक्योर वाली पड़ी है, आपको दिख रही है सिक्योर वाली फाइल? हाँ ठीक है। ओके, तो सिक्योर वाली फाइल पड़ी है, अभी उसको मैं यहाँ से ओपन नहीं कर पाऊंगा। देखिए अभी ये सब डॉक्यूमेंट फाइल है, बराबर है, या एक्सेल फाइल होगी, चलो डॉक्यूमेंट एक्सेल फाइल भी है, अभी मेरे पास है ना यहाँ पे एक्सेल है, बराबर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गया मैं, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये सब डेटा देखिए एनक्रिप्टेड दिख रहा है। ओके, तो ये पूरा डेटा एनक्रिप्टेड दिख रहा है, तो ये इसका कंट्रोल आपके पास है। अभी इसको ओपन करना है आपको, तो हमारे सिक्योर एक्सप्लोरर में अगर आप एडमिन है, तो अभी मैं देखे वापस जाता हूँ, अभी ये फाइल मुझे ओपन करनी है, बराबर है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से आप ओपन कर पाएंगे, सिक्योर फाइल एक्सप्लोरर से ओपन कर पाएंगे सर। नहीं, अब जैसे मान लो मेरा टैली का बैकअप था, हाँ, अब मेरे को वो आपने सिक्योर एक्सटेंशन में डाला हुआ था। यस, एक मिनट होल्ड। या यस सर 8 सेकंड। या हेलो, हाँ सॉरी सर। हाँ बोलिए। जैसे मान लो टैली का डेटा अपने को खोलना है तो फिर एक्सटेंशन अपने को नॉर्मली रखना पड़ेगा ना? वही सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास एडमिन में एक राइट्स होता है इंस्टेंट डिक्रिप्ट करने का। ओके ओके, वो इंस्टेंट डिक्रिप्ट करेंगे है ना फीचर? हाँ वो है सर, वो है इंस्टेंट डिक्रिप्ट करके, वो है हमारे पास सर, इंस्टेंट डिक्रिप्ट करके आता है। फीचर्स है मेनली, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको ये भी फीचर्स है, सिक्योरा में तो बहुत सारे फीचर है सर। अभी जैसे अभी आपका जो भी डेटा रहता है सर, जो भी ईमेल होते हैं, एक मिनट बहुत ही डिस्टरबेंस आ रहा है, एक मिनट कहाँ से आवाज आ रहा है इतना? ओके, बहुत ही डिस्टरबेंस है। ओके, सो यहाँ पे कैसा है कि आप ऑटो एनक्रिप्शन का ऑप्शन हम देते हैं सिक्योरा में, जहाँ पे आपको क्या चाहिए कि आपको जो फाइल्स है, जो आपके एम्प्लॉयज है उसके कंप्यूटर में सेव करते हैं, जो भी फाइल एक्सटेंशन, उसको आप ऑटोमेटिकली सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वो फाइल एक्सटेंशन जो चाहिए आप उसको अलाउ कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे ना टैली का डेटा है, टैली में बैकअप का फीचर है कि टैली में लोग अपना बैकअप ले सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे भी टैली का एक्सटेंशन है 001, जो बैकअप फाइल मेरी बनती है उसको मैंने ऐड कर दिया। ओके, उसको मैंने अलाउ कर दिया, मुझे सिक्योर चाहिए। अगर मुझे कोई पीडीएफ फाइल है उसको सिक्योरिटी चाहिए, या मुझे मुझे और कोई फाइल एक्सटेंशन है डॉक्यूमेंट फाइल, उसको भी सिक्योर करके चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एनेबल कर सकता हूँ। और जो एम्प्लॉय में जाऊंगा, अभी समझो कि मेरे को ये हिमांशु का एम्प्लॉय है, उसको मुझे सिक्योर करना है, तो वहां पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए अल्ट्रा कंटेंट प्रोटेक्शन में ऑटो फाइल एनक्रिप्शन में जाके मैं उसको हार्ड ड्राइव या कहीं पे भी वो सेव करेगा, और वहां पे जाके मैं ऐड करके जो एक्सटेंशन मुझे ऐड करना है मैं सिक्योर कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली। अभी मैंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके सेव कर दिया। अभी क्या होगा, मेरे कंप्यूटर में जो भी फाइल बनेगी इस एक्सटेंशन की, ऑटोमेटिकली वो सिक्योर हो जाएगी सर। ये इंक्रीमेंटल बनता है बैकअप? सब इंक्रीमेंटल बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंटल बैकअप ही है सर, ओके बाय डिफॉल्ट। और इसमें अपन ऐसा करते हैं कि एक तो अपन अब क्लाउड पे भेज दें और एक अपन लोकल सर्वर पे भी। वैसे ही है सर, वैसे ही है सर,
जैसे अभी मैं आपके मेरे कंप्यूटर में और एक ऑप्शन बताता हूँ। अभी ये देखिए सर, ये डेमो फोल्डर है ना, ये मेरे कंप्यूटर में पड़ा है। यही डेटा मैंने क्लाउड के साथ ऑटोमेटिकली सिंक किया हुआ है। ये देखिए, मैं क्लाउड में भी दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, आपको क्लाउड दिख रहा है मेरा? हाँ अभी दिखा देता हूँ मेरे कंप्यूटर में। ये देखिए, डेमो टेस्ट फोल्डर 2, ये सब फाइल जो आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है सर। ओके फाइन। ओके, और इसका भी वर्जनिंग मेंटेन होता है सर। अगर मैंने अभी किया नहीं कोई चेंज, हाँ, अगर ठीक मैं है। करता था तो यहाँ पे वर्जन भी दिखता हाँ था। ठीक है, वो तो कॉन्फ़िगर करना वाली चीज़ है। यस सर। और क्या फीचर है इसमें? एक तो अपना ये हो गया, बैकअप का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, यस। और सिक्योर में और क्या और फीचर्स क्या हैं? है, आपको हम यूएसबी कंट्रोल भी देते हैं, एक्सेस कंट्रोल। आप ब्लॉक कर सकते हैं यूएसबी सर, सब एम्प्लॉय के कंप्यूटर में, यहाँ पे बैठे बैठे एडमिन से। ओके। ओके, अच्छा, दूसरा देखिए हम इसमें आपको दो ये भी चीज़ है, फीचर, हाँ इसमें दो बोलिए। चीज़ है हाँ, कि जो नेटवर्किंग है वो आईपी चाहिए या डोमेन चाहिए? डोमेन चाहिए। अब जहाँ पे आईपी बेस्ड हो रहा है वहाँ पे वो हम डोमेन कन्वर्ट कर देंगे सर, नेटवर्क। नहीं, आप तो डोमेन कर दें नहीं कन्वर्ट। हम्म, लेकिन क्या होता है वहाँ पे ऑलरेडी जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो आईपी बेस्ड पे चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे डोमेन और आई, अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ, आईपी भी रहेगा और डोमेन दोनों रहेगा सर उसका। ठीक है। बराबर है, समझ गया मैं आपकी बात, वो दोनों रहेगा सर, क्लियर। अच्छा, ये मान लो टैली जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, अब ये कोई थर्ड पार्टी इस पे कोई पोस्टिंग करती है, उसको परमिशन अपन उसके थ्रू दे दे रहे हैं, जो भी आप बता रहे थे फीचर। मतलब मेरा आपका, मुझे आप थोड़ा समझाइए क्वेश्चन, आपका जो जैसे मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताइए। जैसे क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, हाँ, हम उसमें टैली में डेटा भेजते हैं। ओके। तो जैसा भी आपने किया कि हमने टैली के डेटा वाले फोल्डर को ब्लॉक कर दिया, हाँ, ठीक है, और आपने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपने सिक्योरिटी के थ्रू आपने टैली को परमिशन दे दी कि भाई डेटा के फोल्डर को वो पढ़ सकता है, राइट कर सकता है, रीड कर सकता है। बराबर है। वैसे हम हमारे वाले सॉफ्टवेयर को भी वही परमिशन देंगे, तो वहाँ पे वो भी अलाउ हो जाएगा। यस, वो भी वाला हो जाएगा, ओके परफेक्ट। फाइन, फाइन, ठीक है। वो आपके हाथ में है ना, जो भी सॉफ्टवेयर आपको ऐड करना है कर सकते हैं ना सर। हाँ, वो वही फीचर। यस सर। हिमांशु ये जी, जो एक अभी बारी आपके आप सामने डेटा नजर फोल्डर आ रहा है मेरे को, टैली के आप, आपकी आवाज डबल डबल बार आ रही है सर, संजय सर। रजत बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए सर। बोल रहा हूँ, आप डेटा फोल्डर पे जाएंगे एक बार टैली के? यस, मेरे कंप्यूटर में। हाँ जी, आपके कंप्यूटर पे ही। मैं यहाँ पे जा ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज डेटा मुझे दिखेगा ही नहीं ना सर, है ही नहीं, नहीं दिखेगा दिख ही रहा नहीं। सर। एक बारी आप क्या प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, जो कौन ऊपर से? प्रॉपर्टीज लिखी हुई यस, है बटन? या श्योर, मैं आपको ऑप्शंस पे ना, ये रहा, हाँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ। आपको ये डाउट है, ये मैंने देखिए शो हिडन फाइल रखी हुई है ऑलरेडी, या और मैंने हाइड हाइड सब निकाल के रखा हुआ है। यस यस यस, ये कुछ भी ठीक है। अलाउ नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि वो हिडन करके रख देते, ऐसा नहीं है सर। हाँ, वो वो वाला विंडोज वाला हिडन नहीं है ये। सिस्टम हिडन फाइल्स भी एक नहीं नहीं, हाँ वो चीज होता है, मैं है। तो आपको वो बताता हूँ दो अभी। चीज होती है, एक हाँ, विंडोज यस यस नॉर्मल यस हिडन फोल्डर और एक यस। सिस्टम हिडन फोल्डर। अभी मैं देखिए हिडन करता हूँ, ये नॉर्मल में प्राइवेट डेटा करके रखा है, उसको हिडन कर रहा हूँ आपके सामने, हाँ, बराबर है। उसको या मैंने हिडन मारा अभी, ये अपना विंडोज का हिडन हो गया, बराबर है। लेकिन जब भी प्राइवेट हिडन मारूंगा ना, तो अभी मैं प्राइवेट हिडन डेटा करूंगा ना, तो मैं ओपन कर पाऊंगा। ये देखिए अंदर दिख रहा है, हाँ 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 हाँ। ये अलग है, ये हिडन अलग है सर। हम्म ये हमारा डेटा आपको वो तो ऐसा दिखा रहा है सर, देखिए कि है ही नहीं, फोल्डर ही नहीं है। हम्म चेक स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन हम्म, से पूरा टोटल डिफरेंट है सर। ठीक है। हम जो कर रहे हैं, हम आपको बता रही है, पूरा टोटल डिफरेंट बता रहे हैं सर यहाँ पे। यूजर जो क्रिएट होंगे, हाँ बेसिकली आपके सॉफ्ट, जैसे मैं सर्वर टू क्लाइंट पीसी की बात कर रहा हूँ, हाँ, सारे यूजर्स पहले तो सेटअप होंगे सर्वर के अंदर, राइट, फिर क्लाइंट पीसी पे उनको सिक्योर का बटन मिलेगा जिसके अंदर हम टैली चला करके दे देंगे उनको। परफेक्ट। एंड वाया दैट ओनली, either it be a tally or a software, either it be any other software, ये जो इतनी भी परमिशंस आपने नेटवर्क पे सेटअप कर रखी है उनको आप दे सकते हो उसके थ्रू। नहीं, मुझे वापस भी जाए, बिकॉज बहुत डिस्टरबेंस था। तो मतलब आपने टेली नेटवर्क में बोला, उसके बाद मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया प्रॉपर्ली। कैन यू प्लीज मतलब रिपीट? मैं बोल रहा हूँ टेली नेटवर्क पे चलाने के लिए हमें क्लाइंट साइड पे सिक्योरा के सॉफ्टवेयर से वो चल जाएगा। यस,
ठीक है, और जो हम नेटवर्क शेयरिंग नॉर्मल करते हैं उसके ऊपर वो डेटा लॉक्ड रहेगा फॉर दैट पर्सन? यस सर, लॉक रहेगा, मतलब आपको फोल्डर दिखेगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, उसका भी कैसे दिखेगा ना वो भी बताता हूँ। जैसे कि अभी मेरा ये एक सेकेंड सर, अभी ये देखिए, मैं यहाँ पे फोल्डर में गया, आपका है ना डेटा ऐसा दिखेगा, नेटवर्क में लॉक करके दिखेगा। अभी मैंने लॉक मारा ना, अभी ये देखिए डेटा फोल्डर दिखना चालू हो गया। मैं एक्सेस करने जाऊंगा तो ऐसा आएगा, एक्सेस इज डिनाइड। ओके, ये एक्सेस इज डिनाइड हो जाएगा सर। इस सिस्टम पे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो क्या? लॉगिन नहीं, आप कैसे करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, यूजर हो, कुछ भी हो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर ही यूजर हूँ, लेकिन अगर मैं कोई भी यूजर हूँ तो भी प्रॉपर्टीज चलेगा। में जाकर के मेरे को विंडोज प्रॉपर्टीज में जाकर के सिस्टम एडमिन का दिखा दीजिए प्लीज। हाँ मैं बता देता हूँ। अभी ये सिस्टम एडमिन का जो आप बता रहे हैं मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब कहाँ पे बात कर रहे हैं आप, यूजर के एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं? होल्ड करिए सर, अभी बताता हूँ। बैंक विंडोज 10 में कैसे होएगा वो? मैं यूजर्स में गया, मैं अभी योर इन्फो इंटरफेस है ना, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। हाँ वही मेरा प्रॉब्लम है वो। हाँ विंडोज 7 ये नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ सर, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ओके ठीक है सर, उस पर राइट क्लिक करिए फोल्डर पे एक बारी। कहाँ पे फोल्डर में? अपना ये डेटा फोल्डर। टैली का जो फोल्डर आपने लॉक कर दिया है, हाँ, या उसको राइट क्लिक किया मैंने, उसको प्रॉपर्टीज पे चले प्रॉपर्टीज में गया जाइए, मैं। यस सिक्योरिटी पे चले जाइए, यस गया मैं। एडवांस सिक्योरिटी पे चले जाइए। यस इसके अंदर आप सिस्टम एडमिन हो ना, तो Yes, हु मैं- इज द ओनर अनेबल टू डिस्प्ले, इस पे चेंज पे जाइए सर ऊपर। हाँ इसको कंटिन्यू तो कर दीजिए। ये कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। यस, यू डू नॉट हैव परमिशन। ओके, और इफेक्टिव एक्सेस में भी नहीं है। ओके, एक बार ये अनलॉक, उसको अनलॉक कर दीजिए सर। अभी अनलॉक करूँ मैं? उसके बाद हाँ, उसके बाद व्हाट्स द सिनेरियो, आई वांट टू सी दैट। श्योर, एक सेकेंड सर। यहाँ पे गया मैं, इसको मैं अभी एंड डिसेबल कर दिया मैंने। Yes. नॉर्मल हो गया अभी ये। या अभी मैं अंदर जा सकता हूँ। अभी आप मेरे को प्रॉपर्टीज पे जाकर एक के मिनट security दिखा दीजिए। इफेक्ट आ गया कि नहीं, जस्ट चेक कर लेता हूँ। एक मिनट सर, जस्ट होल्ड ऑन। अबे डिसेबल अच्छा किया कि नहीं मैंने किया? ये मैंने किसको डिसेबल किया देन? सॉरी, अभी डिसेबल होगा। हाँ अभी देखिए ओपन हो गया। या एक बार अभी मैं प्रॉपर्टीज में चलिए। प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ मैं। श्योर, वापस सिक्योरिटी में जा रहा हूँ। सिक्योरिटी, अभी ये चेंज हो गया, पूरा हो गया। एडवांस, एडवांस में नॉर्मल ओपन हो गया सब। यस, ओनरशिप। ओके ठीक है, ठीक है सर। या और कोई क्वेश्चन है सर? सर इसके अलावा सिक्योरा में और क्या फीचर्स हैं, जैसा भी आप बोल रहे हैं? ईमेल सिक्योरिटी भी है, हम आपको ईमेल सिक्योरिटी भी देते हैं। मतलब आपके जो भी ईमेल्स है वो इनकमिंग आउटगोइंग सब एनक्रिप्ट हो जाएंगे सर। मतलब आपके एम्प्लॉय आपके ईमेल्स कॉपी नहीं कर पाएंगे अपने डोमेन पे होंगे तो अपने कहीं पे भी, तो भी नहीं। क्योंकि उसका रीजन है सर, क्योंकि आपको पहले तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर ईमेल अकाउंट जो हमने किया ना, यहाँ पे हम आपके जो भी एम्प्लॉयज के ईमेल सेट करते हैं और उसके पासवर्ड भी यहाँ पे ही सेट करते हैं। ओके, आपको पहले तो आपको ईमेल का पासवर्ड शेयर ही नहीं करना है आपके एम्प्लॉय को। ओके, जैसे ही वो सिक्योरा डाउनलोड करेंगे, जैसे अभी मेरे कंप्यूटर में आप देखेंगे मेरे 6 ईमेल एड्रेस है डिफरेंट, वो मैंने 6 के 6 ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो गए यहाँ पे। क्लियर हुआ सर? हाउ डज आपकी जो होस्टिंग है फॉर द ईमेल सर्विसेज के लिए, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या आप होस्ट हो उसके अंदर? नहीं, आप अभी कैसा है, इसमें हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारा है ना सॉफ्टवेयर है ना, उसमें आप कोई भी होस्टिंग सर्विस ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको ईमेल सर्वर सेटिंग्स है, जब भी मेरा डोमेन जो भी है मेरा सेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उसमें कौन सा होस्टिंग है, मेरा ईमेल कहाँ पे पड़ा है, गूगल में पड़ा है, याहू में पड़ा है, और जैसे कि O365 है, रेडिफ मेल है या अदर है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको डोमेन ऐड करके रख देना है, बस सिंपल है। ठीक है, तो आपका ये इनकमिंग आउटगोइंग सेटिंग सेट हो गया तो ऑटोमेटिकली इसीलिए कॉन्फ़िगर हो जाता है, बिकॉज आपको खाली पासवर्ड सेट करना है यूजर वाइज। तो यूजर क्या करेंगे, जैसे ही सिक्योरा इंस्टॉल करेंगे
उनके कंप्यूटर में पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा। जैसे पिन एंटर करेंगे उसका ओटीपी जनरेट होगा, जो आपको डिवाइस वाइज आप है ना, हर एक एम्प्लॉय का डिवाइस वाइज ओटीपी बनता है सर। तो हर एक एम्प्लॉय को डिवाइस वाइज आपको उसको एक्सेस करने का ऑप्शन दे सकते हैं। तो जो जब भी डालेगा ओटीपी डालेगा, ऑटोमेटिकली ईमेल सिंक होना चालू हो जाएंगे उसके। ये सब ईमेल सब मेमोरी यूज करता है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, ये मेरे कंप्यूटर में देख लीजिए, टास्क मैनेजर में जा रहा हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में सिक्योरा वर्क 700 तक एमबी तक ले रहा है, दिख रहा है? स्पेस तो पूरी चाहिए। ओके, तो मेमोरी ऐसा भी नहीं ले रहा है सर। और हमारा जो नहीं वो हमारे में है सर, बिकॉज हमारा जो अभी जो वेब वर्जन मतलब इसके अंदर जो कई सारे जो मॉड्यूल्स है ना, व्यू क्रोमियम ब्राउजर है इसके लिए। ओके, अब ये दिख रहा है आपको वर्क सर्विस, ये भी हमारा चालू रहता है, कांस्टेंट चालू रहता है, क्योंकि आपने सिक्योरा बंद कर दिया लेकिन आपने डेटा किसी ने कॉपी करना चाहा तो ये क्या करता है, मॉनिटर सर्विस चालू ही रहेगा। अभी मैं एंटास भी करूंगा ना, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये देखिए चालू हो गया। ओके, अगर वो यूजर अनइंस्टॉल भी करेगा तो फिर भी वो फोल्डर लॉक ही रहेगा। विदाउट क्लाइंट डेटा से आपके यहाँ से कॉपी करने या डेटा सिक्योरिटी का 100% सिक्योर है। 100% सर सिक्योर है। आपको ट्राई करना है तो कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि हमने तो सब टेस्टेड किया हुआ है सब, और हमने जो प्रोसेस ही ऐसे डिजाइन किए कि सिक्योरिटी की सर, इसीलिए तो हमारे सिक्योरा का ये प्रोडक्ट है, उसकी जो सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है हमारा, डेटा एनक्रिप्शन की ट्रांसफर, उसको हमने पेटेंट अप्लाई किया हुआ है सर। ओके, ये प्रोडक्ट हमने जो प्रोसेस है उसका पूरा प्रोसेस को पेटेंट अप्लाइड किया हुआ है सर। सर जैसे आप 5 GB के लिए बोलते हैं कि 5 GB ऑफ डेटा इज पर यूजर है, पर यूजर बराबर है। अब अगर आप 10 यूजर पे जाते हो तो 50 GB मिलती है आपको। 50 GB क्लब हो जाएगा वो। हाँ, 50 GB क्लब हो जाएगा। एज अ एडमिन आप किसी को भी बाद में 2 GB 1 GB जैसे यूजर को देना है दे सकते हैं सर। ठीक है, और जो इसके इंक्रीमेंटल बैकअप्स बनते हैं, हाँ, does that count in that space? yes obviously sir, that is countable. Okay. yes because ऑलरेडी आपका वो स्पेस यूज ही होता है ना सर। ओके, ठीक सर है। एक चीज बताएं, हाँ अगर मान लो मैंने कोई इमेज फोल्डर है, हाँ उसको मैंने सिक्योरिटी किसी फोल्डर में डाल दिया, हाँ, मुझे सिक्योरिटी फोल्डर में डालने से ये कि कोई आदमी उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। राइट। अब उस फोल्डर को मैंने किसी को शेयर किया रीड ऑनली के लिए, तो वो रीड ऑनली कर पाएगा या उसको कॉपी भी कर पाएगा? ऑब्वियसली अगर सर आपने मैं आपको बताऊं क्या करना चाहिए आपको, इस तरह का इमेज सिक्योरिटी है तो सिंपल है। आपको क्या करना चाहिए, सिक्योरा में हमारा सिक्योरा जो क्लाउड है ना, तो उसमें मैंने समझो के रखा हुआ है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लोकल में भी ये कर सकते हैं लेकिन आपको क्लाउड का समझा दूंगा, वो इजी हो जाएगा। क्लाउड पे समझो। हाँ, मैं आपको क्लाउड में समझाता हूँ। अभी ये मेरी फाइल है, ये प्रेसिडेंसी का फाइल है मेरा फॉर एग्जांपल। इसको मेरे को क्या करना है, मैंने इतने लोगों को शेयर किया हुआ है, तो मैं जब भी शेयर करता हूँ ना यहाँ से, तभी मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको राइट्स दे सकता हूँ कि उसको क्या करना है, अलाउ कॉपी करने देना है, अलाउ शेयर करने देना है, वो सब चीजें मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, अभी और दूसरा भी चीज है कि जब भी वो लोग ओपन करेंगे ये फाइल, जैसे अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। नहीं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम पर फाइल को नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं उस फोल्डर को अपन राइट्स दे दें। उस फोल्डर के अंदर मैं आपको फोल्डर में भी कर सकते हैं, फाइल में भी कर सकते हैं। अभी ये फोल्डर है, अभी ये फोल्डर है, समझो ये फोल्डर पे 3 डॉट किया, उसको मुझे शेयर करने का अभी मेरे पास परमिशन नहीं है ये कंप्यूटर में, लेकिन यहाँ पे मैं फोल्डर शेयर भी कर सकता हूँ। फीचर है अवेलेबल, या फीचर अवेलेबल है इसमें। ये देखिए अभी ये फाइल है ना, ये फाइल मैंने शेयर की है, तो ये मैं अभी इसको काम कर पाऊंगा लेकिन इसकी कॉपी नहीं बना पाऊंगा। कॉपी नहीं होता, सेव भी नहीं होता, कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, खाली मैं काम कर पाऊंगा इसके अंदर, एडिटिंग कर पाऊंगा। इवन मल्टीपल लोग काम कर पाएंगे जिसको काम करना है इसके अंदर। सो ये सब फीचर्स है सर। ठीक है, परफेक्ट है। तो सर अभी हमारा 12 बजे एक और एक डेमो है, किसी को कोई क्वेरी है? स्मिथ कैन यू प्लीज आस्क के, हम 2 मिनट 5 मिनट डिले चल रहे हैं। स्मिथ नहीं, अपने मेनली हाईलाइटेड फीचर्स मेरे को एक बार हल्का सा बता दे तो थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा। सी
मतलब आपका जो करंटली डाउट है अविनाश जी, मतलब मुझे आपका खाली इंट्रोडक्शन देंगे सर, तो मैं आपको उसके हिसाब से समझाऊं कि आपको क्या एग्जैक्टली अच्छा रहेगा दिखाने में मुझे, बिकॉज ये फीचर ऐसे है ना, प्रोडक्ट बहुत सारे फीचर्स है और एक ही प्रोडक्ट में बहुत फीचर है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना हो ना, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़े फीचर ही दिखाते हैं पहले। नहीं, ये जो फीचर्स है ना, ये तो हाँ। ठीक है, मेरे लिए ठीक है। मैं बेसिकली हम लोग जो है, हम लोग खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और हम लोग अपनी ERPs वगैरह बेचते हैं, ओके, ठीक है। अंडरस्टूड। तो मेरी आपके यहाँ, मेरे को एक्चुअली नाम तो पता नहीं, मेरी किन से बात चलती है आपके यहाँ सिक्योरा में? अक्षय, अस्मित या नीलोफर, 3 है अभी जो आप एक पार्टनर को कांटेक्ट करते हैं। होल्ड सेकंड, मेरा फोन दे दो। अश्मित, एक मिनट होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें। हाँ। अविनाश जी से बात मेरी होती है। आपकी चलती है ना सर? तो बेसिकली हाँ, मैं हाँ, ये- जैसे ये तो एक प्रोडक्ट हो गया आपने, ये Yes, तो बहुत sir. अच्छा प्रोडक्ट है। वो ये product उनको बहुत कॉल अच्छा है। कर, उनको बोलो कि 5 मिनट डिले चल रहे हैं हम लोग। यस सर, अभी जस्ट बात किया मैंने। ओके, कर दिया ना बात? यस, ओके। ओके। ये प्रोडक्ट तो आपका 100% ओके है, इस प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है। इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट्स हैं क्या आपके पास? नहीं, हमारा ये प्रोडक्ट ही है मेन तो, और दूसरा हमारा स्कूल ERP एप्लीकेशन है सर। नहीं, ठीक है सर। ओके सर, किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन है? रजत जी, संजय जी? I'll call him, sir, and I'll get the feedback and then I'll report you back to that. श्योर सर, नो प्रॉब्लम। रजत जी, एनी क्वेरी क्वेश्चन? As of right now, though, I don't have. I'm just curious. Is this a SaaS model or is it a SaaS model? one-time? It's a SaaS model सर। चलो वो commercials we'll discuss later on. श्योर सर, आप संजय सर से बात कर सकते हैं, संजय मेहता जी से। हाँ, वो संजय जी से कर लेंगे। Let me Sure. नो इसको एक बारी डेमो अपने पास इन ग्राउंड चला करके भी देख लेंगे हमारे इकोसिस्टम के अंदर, हाउ इज इट वर्किंग एंड कैन बी शिफ्ट और शुड वी शिफ्ट टू अ पर्टिकुलर लेवल दैट कि ये सारी चीजें हमारे काम की आ सकती हैं। इसका आपको मोबाइल पे हाउ डज दैट गाय लॉग इन टू अ मोबाइल ईमेल सर्विसेज? तो हमारा है ना सर सिक्योरा, विंडोज एप्लीकेशन भी है सिक्योरा की, मैक एप्लीकेशन भी है, मोबाइल में भी एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में चलती है। मतलब आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में आपका एक ही यूजर सब सिंक रहेगा। हाँ, दैट आई एम गेटिंग, बट योर पॉइंट, बट वो वेब के थ्रू तो नहीं है ना, क्योंकि वेब के थ्रू जो होता है ना, जो लेआउट है दैट डजंट